guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 10 students and I'm covering your chapter number 3. So in my last video on this chapter I have covered the first part of this chapter, that is his first flight. Now in this video I'm going to cover the second story of this chapter, which is the black aeroplane. So if you haven't watched the first part, that is his first flight, so you can watch by the link given in the description below. Now we are going to start with second interesting story of this chapter, that is the black aeroplane, and it is written by Frederick Forrest. सो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, खासकर इसका एंड तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा शॉकिंग है, थोड़ा सस्पिशियस है, तो पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं बहुत ही डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, लाइन टू लाइन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली ये स्टोरी है एक पायलट के बारे में हु गॉट स्टक इन अ स्टॉर्म, वेरी डेंजरस स्केरी स्टॉर्म, and we will see how he will be able to save himself. Will he able to get land safely or not, and who would help him? तो चलिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। The black aeroplane. The moon was coming in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. So the narrator says the moon was up in the east behind him and the stars were shining in the clear sky. ये बताना चाह रहा है कि जो मौसम था, जो वेदर था, वो बिल्कुल साफ था। जब आपको बिल्कुल क्लियर स्टार्स दिखने लगे आसमान में तो हम समझ जाते हैं कि जो मौसम है वो काफ़ी साफ है। There wasn't a cloud in the sky, मतलब बिल्कुल भी कोई भी क्लाउड आसमान में नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Why he said sleeping countryside? Because he was flying during night time. So the countryside was sleeping and he was happy to be above the clouds. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So he was traveling in his old aeroplane whom he called Dakota, and he was traveling from France to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So यहाँ से हमें पता चलता है कि basically उसकी family इंग्लैंड में रहती थी पायलट की. So he was very very happy and he was traveling alone and he wanted to meet his family as soon as possible and enjoy his holidays. I looked at my watch 1:30 in the morning. तो सुबह के 1:30 बजे थे, मीन्स रात का टाइम था। सुबह के 1:30 तभी बजते हैं जब रात हो रही होती है। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down the past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. So he was about to reach and he saw the big city in front of him, that was Paris. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. So जनरली क्या होता है, जो पायलट्स होते हैं, जो एरोप्लेन चलाते हैं, वो क्या करते हैं, रेडियो के थ्रू बात करते हैं टू हेल्प देम इन डायरेक्शंस और अदर स्टफ जो उनको ज़रूरत होती है। तो बेसिकली उसने कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट किया और बताया कि आई एम हेडिंग टूवर्ड्स इंग्लैंड। The voice from the radio answered me immediately. DS088 ये उनका कोड था, किसका, ये प्लेन का कोड होता है। I can hear you, you ought to turn 12 degrees west now. तो उन्होंने उनको डायरेक्शंस बता दी कि अब आपको 12 degrees west टर्न करना पड़ेगा। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees towards England. तो as per the instructions, उसने safety measures सारे ले लिए. He checked his fuel tank and all, and as said by the control room, he turned 12 degrees west. I'll be in time for breakfast, I thought. So he was so happy to meet his family. तो उसने सोचा हाँ नाश्ते तक, ब्रेकफास्ट तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो तब सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत easy flight थी. He was very very excited to meet his family, to have breakfast with them. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. So he has already traveled 150 kilometers. He was already 150 kilometers ahead. That's why it is written that Paris was 150 kilometers behind him. Storms, clouds, they were huge. Now what he saw, उसने क्या देखे, clouds देखे, बहुत घने storm clouds, जो तूफान लाते हैं ऐसे बादल उसने देखे.
he looked they looked like black mountains standing in front of me across the sky. तो बड़े बड़े काले पहाड़ों की तरह थे वो, बहुत ही ह्यूज क्लाउड्स थे ब्लैक कलर के. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to north or south. अब सॉरी, अब दिक्कत क्या थी कि उनको पता था कि ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम, कि वो उसके ओवर फ्लाई नहीं कर सकता, और उसके एरोप्लेन में उतना फ्यूल नहीं था कि वो पूरी अपने डायरेक्शन चेंज कर दे और क्या करे कि वो उसके अराउंड फ्लाई कर ले. ठीक है, नॉर्थ या साउथ टर्न करके उसके बिल्कुल अराउंड फ्लाई करके आगे निकले, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता और इतना फ्यूल उनके पास नहीं था. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. तो एक ऑप्शन ये था कि मैं उसके पास कि वो वापस पेरिस चला जाए, बट he was so eagerly waiting to go to home. I wanted that breakfast, but उसको था नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करना है. मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली वो ब्रेकफास्ट के लिए इतना ईगर नहीं है, बेसिकली फैमिली को मिलने के लिए ईगर है. सो दिस इज द सिंबल, द ब्रेकफास्ट इज द सिंबल दैट हाउ ईगरली ही वांट्स टू मीट हिज फैमिली. आई विल टेक द रिस्क. एंड वॉट ही डिड, वापस जाने के बजाय उसने बोला कि चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और उसने सीधा एरोप्लेन अपने स्टॉर्म के अंदर ले गया और उसने सोचा कि क्या पता मैं इसको क्रॉस कर लूँ. Inside the cloud, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. जैसे ही वो क्लाउड के अंदर एंटर किया तो हर चीज was totally black and it was impossible to see anything outside the aeroplane. The aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and it was dead. और सडनली उसने अपने कंपास की तरफ देखा जो डायरेक्शन बताता था, तो कंपास was moving round and round and was shocked because compass stopped working. Compass was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काम करना बंद कर गए. And now he tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead. फिर उसने चेक किया रेडियो से कनेक्शन करके, बट रेडियो भी क्या था, इट वॉज ऑल्सो डेड. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. ना रेडियो था ना compass था. He did not know that where he was, and he was completely lost in that storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings. और suddenly उसने क्या देखा, उसी storm में एक और एरोप्लेन देखा जिसकी wings पर कोई भी लाइट नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. But वो उस एरोप्लेन को देख पा रहा था क्योंकि वो उसी स्टॉर्म में उसके साथ ही फ्लाई कर रहा था. आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी एंड ही कुड इवन सी द पायलट्स फेस. आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. और वो होता है ना, जब आप मुसीबत में फंसे होते हो, एकदम अकेले होते हो और आपको कोई और हेल्प दिखती है तो आप कितना रिलैक्स फील करते हो. वही सेम इसके साथ नरेटर के साथ हुआ, दैट ही सॉ द pilot's face and he was relaxed and pilot waved his hand. उसने अपना हाथ वेव किया नरेटर की तरफ. Follow me, he was saying follow me. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. तो उसने बोला follow me and he feels so relieved that this person at least knows that I am lost and now I am getting help. He turned his aeroplane slowly to the north in front of Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उसने अपना एरोप्लेन इस तरह से टर्न कर दिया जिससे कि वो इजीली उस एरोप्लेन को फॉलो कर पाए, मींस जो ब्लैक एरोप्लेन है. आई वाज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड. उस पास कोई चारा ही नहीं था, उसको एक हेल्प दिखी थी, तो लाइक अ वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड ही स्टार्टेड फॉलोइंग दैट एरोप्लेन. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधा घंटा तक वो ट्रैवल करता रहा और अभी भी वो एरोप्लेन उसके सामने था. नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. बट अब फ्यूल उनके पास इतना ही बचा था पायलट के पास कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट और ट्रैवल कर सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. तो वो दोबारा से डरने लग गया कि व्हाट विल हैपन, द फ्यूल विल फिनिश. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. बट उसने सडनली देखा कि अब वो नीचे जाने लगा. जब नीचे कब जाता है प्लेन, जब वो लैंड करने लगता है. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway and airport. I was safe.
तो ही वॉज सो रिलैक्स, उसको लगा फ्यूल खत्म होने वाला है, बट उसी वक्त उसने देखा कि ही हैज़ लैंडेड सक्सेसफुली एट द एयरपोर्ट। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और उसने सडनली देखा कि चलो मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ, वो जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा था, जिसने मुझे हेल्प की, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बट ही सडनली सॉ द स्काई वॉज एम्प्टी। वहाँ तो कोई था ही नहीं, देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो उसने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और वो उसको देख नहीं पाया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो उसने बाद में पूछा उस कंट्रोल रूम में जाके जो वुमन थी कि मैं कहाँ पर हूँ, एंड ही इंक्वायर्ड अबाउट दैट पायलट बिकॉज वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था, बिकॉज दैट पर्सन इन द ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली सेव्ड हिमसेल्फ, saved the narrator. She looked at me very strangely and then laughed. तो उसने बहुत strangely narrator की तरफ देखा और वो हंसने लगी. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. पर उसने बोला कि और कोई एरोप्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था, मैंने पूरे रडार में देखा, there was only your aeroplane that was flying tonight. So who helped me to ride there safely without a compass or radio or without any more fuel in my tanks? तो वो कह रहा था किसने मेरी हेल्प की, ना मेरे पास कंपस था, ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास फ्यूल था, तब भी मैं यहाँ पे सेफली पहुंचा। दैट मीन्स किसी ने तो मेरी वहाँ पे हेल्प की है। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? तो स्ट्रेंज ब्लैक जो अजीब सा एरोप्लेन था, जिसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, काफ़ी स्ट्रेंज सा एरोप्लेन था, तो वो कौन पायलट था उस एरोप्लेन में फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? एंड हेयर द चैप्टर एंड्स। तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग देयर वाज अ पायलट, देयर वाज अ ब्लैक एरोप्लेन हु हेल्प द नरेटर, बट कंट्रोल रूम के हिसाब से वहाँ पे कोई एरोप्लेन था ही नहीं। सो दैट इज़ वाई द वुमन सिटिंग इन द कंट्रोल रूम, शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आई कुड नॉट सी एनी पर्सन ऑन द रेडार, यू वर द ओनली पायलट हु वॉज फ्लाइंग टू नाइट। सो बेसिकली इसमें जो आपके ऑथर हैं इस स्टोरी के, वो अल्टीमेटली रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि वो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि व्हाट दे थिंक दैट हु वाज द पायलट हु सेव द नरेटर। या ऐसा भी हो सकता है कि नरेटर की कुछ इमेजिनेशन थी, इट कैन बी गोस्ट, इट कैन बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ही कैन बी एनीवन। सो बेसिकली लाइक आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा जाता है दैट हु डू यू थिंक वाज द पर्सन हु हेल्प द नरेटर। तो बेसिकली इट इज़ अप टू यू टू इमेजिन। सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन वो पर्सन था जिसने उनकी हेल्प करी थी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। तो हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। और आप मेरे को मैसेजेस के थ्रू भी डाउट्स पूछ सकते हैं टू माई इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज एज वेल एज माई ईमेल आईडी, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, उससे आपको मेरी वीडियो कब आ रही है सब अच्छे से पता चल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।